عملیات کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس سے اکثر عاملین ناواقف ہیں. آپ سمندر پار چلے جائیں تو جادو اثر نہیں کرتا. میں 4 سال سے ہر طرح کی پڑھائی کر چکی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ معالج بھی اویلیبل نہ ہو اور مریض بھی ملک سے باہر ہو. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اپنے چینل کے کومنٹس کو میں خود ہی ریڈ کروں، اور کوشش کرتا ہوں جو کومنٹس دیکھتا ہوں ان کے جوابات، اگر مختصر انداز میں سوال ہوتا ہے اور اتنا لمبا چوڑی تفصیل والا اس کا جواب نہیں ہوتا، تو میں کوشش کرتا ہوں اس کا جواب ادھر ایک کومنٹ باکس کے اندر ہی دے دیتا ہوں. لیکن بعض سوال ایسے ہوتے ہیں جو پرسنل میں واٹس ایپ پہ کیے جاتے ہیں یا کومنٹ باکس کے اندر، جن کا جواب تفصیل کے ساتھ دینا ضروری ہوتا ہے، اور ان کا جواب اس لیے تفصیل کے ساتھ دینا اور پھر اس کے اوپر ویڈیو بنانا اس لیے اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ لوگوں کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. عام لوگوں کو بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. جو صرف اس بندے کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ہم اس کو جواب واٹس ایپ کے اندر یا پرسنل کے اندر جواب دے دیتے ہیں، لیکن جس سے لوگوں کو فائدہ زیادہ ہو رہا ہو، جن سے لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہو یا احتیاطی تدابیر کے حوالے سے فائدہ ہو رہا ہو، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کا جواب ویڈیو کی شکل میں بنا دیں. لوگوں کے کومنٹس تھے جن کے اوپر ہم نے سوچا کہ ایک مستقل ویڈیو بنائی جائے اور ان کا جواب دیا جائے. تو چھوٹے چھوٹے سوالوں کا جواب. میرا سوال یہ ہے کہ معالج بھی اویلیبل نہ ہو اور مریض بھی ملک سے باہر ہو، اور وہ ان سب جادو کو نہ مانتا ہو، تو اس کا علاج خود تصور میں کر سکتے ہیں. جی، اب پہلی بات یہ ہے کہ ایک بندہ اس جادو کو سرے سے مانتا ہی نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر اس کا علاج کیسے کیا جائے. یہ واقعی میں بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، بہت ہی مشکل مرحلہ ہے. اس کے علاج کے لیے بنیادی طور پہ عملیات کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس سے اکثر عاملین ناواقف ہیں. ہمیں استادوں نے بتایا تھا کہ آپ یہ چیز سیکھ لیں ریکی کے حوالے سے، کہ وہ انسان کہیں بھی بیٹھا ہو اور مریض کسی دوسرے ملک کے اندر بیٹھا ہے، کسی بھی جگہ بیٹھا ہے، اس کا علاج کیسے کیا جائے. ایک ریکی وہ ہے جس کے اوپر میں پہلے بھی دوسرے ایک چینل کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں، کہ اس کے اندر کوڈ اور سمبلز ہوتے ہیں، یو کورے وغیرہ، جس کے ان کے یہ ہوتا ہے کہ ان کے الفاظ کے معانی بہت نامناسب ہیں، جن کی وجہ سے ان کے اوپر فتاوی جات بھی اویلیبل ہیں کہ یہ نہیں سیکھنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے. لیکن ایک اسلامی ریکی بھی ہے، وہ قرآنی آیات کے ذریعے، اور ان کے ایک پریکٹس ہوتی ہے مراقباتی تصوراتی، پھر اس کے کچھ لیول ہیں وہ کراس کر لیں. جب وہ بندہ پورے کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کا علاج کیا جاتا ہے. اس کے اوپر میں انشاءاللہ کبھی سکھاؤں گا بھی صحیح، اور ویڈیو بھی بناؤں گا کہ کیسے آپ کسی بھی بندے کا دور بیٹھے جادو، جنات، نظر بد، جسمانی بیماریوں کا علاج کیسے کریں. تو اب اس سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں کہ ایسے بندے کا علاج عام بندہ کیسے کرے. ایک تو ہے عامل کا علاج، ایک ہے کہ عام بندہ کیسے کرے. اس کے عام بندے کے علاج کے لیے بہت ہی سمپل ہے، بہت ہی آسان ہے. وہ یہ ہے کہ 33 آیات منزل مشہور ہے، وہ مل جاتی ہے. وہ 33 آیات منزل کو آپ صبح اور شام 3 مرتبہ دم کریں. اس بندے کا آنکھیں بند کر لیں اور اس کی تصور یہ کریں کہ وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اور آپ اپنا ہاتھ جو ہے اس کے سر کے اوپر رکھے ہوئے ہیں اور دم کر رہے ہیں، اور اس کے جسم سے یہ اثرات وغیرہ نکل رہے ہیں، جادو وغیرہ کی جتنے بھی اثرات ہیں یہ ختم ہو رہے ہیں، اور اس کا جسم جو ہے جادو سے پاک صاف ہو رہا ہے. انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں آپ کو اس کا اچھا رزلٹ ملے گا. اس طرح دوسرا سوال ہے کہ پرانے جادو کا کیا علاج ہے. میں 4 سال سے ہر طرح کی پڑھائی کر چکی ہوں، لیکن مسلط کردہ جنات پیچھا نہیں چھوڑ رہے. بہت ہی زبردست اور انٹرسٹنگ سوال ہے کہ ایک یہ ہے کہ جادو ہوتا ہے تاثیرات کے ذریعے. اس کی کچھ تاثیریں ہوتی ہیں الفاظ کی، منتر جنتر کی، ان تاثیروں کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے. وہ جادو قدرے آسان ہوتا ہے کہ اس کو جو ہی راستہ آپ روکتے ہیں، علاج کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن ایک جادو ایسا ہوتا ہے جو سحری شیاطین کے ذریعے کیا جاتا ہے. پھر یہ شیاطین انسان کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں. پھر جب آپ علاج کرواتے ہیں، تعویذ وغیرہ جو ان کا کورس ہوتے ہیں کرواتے ہیں، یا اس کا آپ خود پڑھائی کرتے ہیں، تو یہ جنات وغیرہ جل جاتے ہیں. کوئی عامل قید کر لیتا ہے،
किसी भी तरह इनको हटा देता है, तो वो जादूगर, क्योंकि उसके पास वाफिर मिकदार में शयातीन की तादाद मौजूद होती है, तो वो दूसरी जमात भेज देता है, दूसरी का आप इलाज करवाते हैं वो तीसरी भेज देता है, वो इस तरह जिन्नात वगैरह भेजता रहता है, क्योंकि उसका एक पीछे एक अमल पड़ा होता है, उसको भेजने की ज़रूरत भी नहीं होती। बाज़ दफ़ा वही अमल जो है खुद ही अपने एक रोबोट की तरह काम कर रहा होता है, वो खुद ही आपके ऊपर वार कर रहा होता है। तो इसका इलाज बड़ा आसान है। इसका इलाज ये है कि सूरत दुखान है, कुरान मजीद की सूरत है सूरत दुखान, इसको 7 जुम्मे पढ़े जाएं और हर जुम्मे को 7 मरतबा इसका कोर्स किया जाए और इसको पानी के ऊपर दम करके पूरा हफ्ता पीते रहें। अगले हफ्ते फिर जुम्मे को जब दम करेंगे तो ये पिछला पानी आपके पास बचा हुआ होना ज़रूरी है, इसके साथ मिक्स करके दम करें। तीसरे जुम्मे भी इस तरह करें, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, 7 जुम्मे जब आप ये अमल करते हैं, मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ये पूरा कोर्स हो जाएगा। ये जादू जिन्नात शयातीन आपका पीछा छोड़ देंगे, आपका जिस्म जो है साफ पाक हो जाएगा। आइंदा के लिए भी अगर आप हिफाजत चाहते हैं तो सूरत दुखान को 1 मरतबा रोज़ाना के मामूलात का हिस्सा बना लें। इसी तरह अगला एक कमेंट है कि अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। मैं शादी करके जब से ससुराल में आई हूँ, पता नहीं कौन है हमारे घर में जादू करता है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ और कोई ना कोई बीमार रहता है। हमारा पैसा बहुत जाता है, प्लीज़ आप कुछ बता दें। तो ये बहरहाल ये जादू के इसका खुलासा ये है कि लंबा कमेंट है, मैं इसका खुलासा आपके सामने पढ़ देता हूँ। खुलासा इसका ये है कि वो कहना ये चाह रही है कि जब से शादी करके मैं आई हूँ मेरे पीछे एक जादू पड़ा हुआ है। तो हमारे घर में कोई ना कोई, मेरी सास कभी बीमार रहती है तो कभी क्या होता है, और इसके ऊपर पैसा भी बहुत ज़्यादा सर्फ हो रहा है। याद रखिए, जादू के इलाज के हवाले से जब आप आमिलीन के हत्थे चढ़ जाते हैं तो फिर वो न आओ देखते हैं न ताऊ देखते हैं। अक्सर की बात कर रहा हूँ, उनमें से बहुत अच्छे भी हैं, बहुत नेक साले भी होते हैं, शरीयत और उसके बड़े पाबंद भी होते हैं, उनके दिल के अंदर दर्द भी होता है, लेकिन इनकी तादाद बहुत कम है। दूसरे आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी न शक्ल व सूरत मुसलमानों वाली होती है और बहुत कुछ जादू के अंदर महारत रखते हैं। ऐसे आदमी के हत्थे जब बंदा चढ़ जाता है, वो आपके ईमान के ऊपर भी डाका डालता है, आपके अकीदे के ऊपर भी डाका डालता है, आपकी जेब के ऊपर और आखिर में आपकी इज्जत के ऊपर भी डाका डाल देता है। लिहाजा इसलिए आप जादूगरों के पास, इनके पास ज़्यादा ना जाए। हाँ, अगर आपको कोई ऐसा मुआलिज दस्तयाब है जिसके ज़रिए आप इलाज करवाना चाहते हैं, उसका ये देखिएगा ज़रूर कि वो शरीयत का पाबंद हो, कुरान और सुन्नत के साथ इलाज करता हो। तो अगर ऐसा आपको दस्तयाब नहीं है, आप चाहते हैं कि आप खुद ही इसका इलाज करें, जैसे आप बता रहे थे कि वज़ाइफ कर कर के थक चुके हैं, तो यहाँ आपको ये बात मैं पता चलूँ कि आप अपने घर के अंदर कोई ऐसी गैर शरई तस्वीर लगाई हुई है तो वो ख़त्म कर दें। तो जानदार की तस्वीर सामने लगी हुई है, किसी औरत की, किसी मर्द की, किसी बच्चे की, अपने फैमिली की है या बहर की है, वो तस्वीर उतार दें। बाज़ दफ़ा ये होता है कि घर के अंदर जो तस्वीर लटकी हुई होती हैं, इन तस्वीर का असर बहुत भयानक यूं पड़ रहा होता है कि और रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जब घर में रहमत ही ना आ रही हो तो आप 100 वज़ाइफ करें, 100 अमल करें उसकी, क्योंकि रहमत आपके वज़ाइफ के ऊपर रहमत ढांप नहीं रही तो आपकी अपनी तस्वीर कितनी होगी पढ़ेगी। लिहाजा तस्वीर निकाल दें। और दूसरा ये होता है कि आपकी ज़राए आमदन, उसके ऊपर भी गौर करना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई कमाई जो है आपकी, इसके अंदर कुछ हराम या सूद वगैरह की, ये इसकी बिल्कुल आमेज़श नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से भी पढ़ाई और वज़ाइफ असरअंदाज नहीं हो पा रहे होते। और तीसरा मरहला ये है कि आप वज़ाइफ करते हुए अपनी तवज्जो और इखलास को मलहूज़ खातिर रखें, और उसके साथ मैं आपको जो वज़ाइफ बता रहा हूँ, ये वज़ाइफ आप अपने साथ जारी रखें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। वज़ाइफ ये है 33 आयात मंज़ल, सबसे बुनियादी अमल है जादू के हवाले से। तो इसको आप 3 मरतबा सुबह, 3 मरतबा शाम पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो घर के सारे मामला ठीक हो जाएंगे। मज़ीद बरा के कुरान मजीद की मशहूर आयत है, वत्तबऊ मा ततलू शयातीन अला मुल्क सुलैमान वमा कफ़र सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफ़रू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर वमा उन्ज़िला अल मलकैन बिबाबिल हारूत व मारूत। ये मशहूर आयत है कुरान मजीद की। आप इस आयत को 41 मरतबा सुबह शाम पढ़ लें, तब भी आपके मामला दुरुस्त हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं, बीमारियाँ निकल सकती हैं।
इसके अलावा अगर आपको मजीद कुछ पूछना है तो पर्सनल में भी रब्ता कर सकते हैं। जो मना कर देते हैं कि हमारे जवाब को या हमारी बात को बताना नहीं है, किसी के सामने जिक्र नहीं करना या वीडियो में या वैसे भी, तो हम कोशिश करते हैं उसका नाम छुपा देते हैं, बल्कि हम कोशिश करेंगे इसका कमेंट भी आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ ना आए। तो एक बहन ने ये सवाल किया है कि हम पाकिस्तान से बाहर ऐसी जगह चले गए हैं जिसके रास्ते में समंदर पड़ता है, तो हमें किसी ने बताया था कि आप समंदर पार चले जाए तो जादू असर नहीं करता, इसकी क्या हकीकत है? तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, किसी ने पूछा है। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है कि समंदर के पार जादू असर नहीं करता। किसने कहा है जादू असर करता है? जादू के असरात होते हैं। हाँ, बाज़ जादू ऐसे होते हैं वो समंदर एक जगह से दूसरी जगह बना चला जाए, उनकी क्योंकि ताकत बहुत कमज़ोर होती है, बहुत कम होती है, तो वो आप पाकिस्तान के अंदर या किसी मुल्क के अंदर भी है तो एक जगह छोड़कर जब दूसरी जगह चले जाते हैं तो वैसे भी उसका असर कम हो जाता है। लेकिन जो जादू ताकतवर होते हैं, जिनके अंदर सख्त किस्म की ताकत होती है, पावरफुल जादू होते हैं, तो उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती कि आप इस जगह हैं या उस जगह। उसका प्रॉपर हल ये है कि आप उसका प्रॉपर इलाज कराएं। आपको जिस किस्म का जादू है, जादू की काफ़ी सारी अक़साम हैं और उनके ऊपर हमारी मुस्तकिल वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और हो भी रही है। काफ़ी सारी अक़साम के ऊपर हमारी वीडियो आ चुकी हैं। अगर आप वो देख लें, कोई ऐसी वीडियो जो आपके रिलेटेड हो तो आप देख लें, आपको हो सकता है उससे फ़ायदा हो। अगर नहीं है तो आप अलामात अपने वगैरह शेयर कर दें, इससे हो सकता है आपका इलाज किया जाए। अब चलते हैं कि दौरान इद्दत के दौरान ही किसी से निकाह कर लेना। इद्दत इसको कहते हैं कि एक औरत मियाँ बीवी आपस में ज़िंदगी बसर कर रहे थे, उनके आपस में नाचाकी हो गई, जैसे भी हुआ तो तलाक हो गई। तो तलाक के दौरान जब तलाक हो गई तो उसकी एक शरीयत ने एक इद्दत मुकर्रर की है, एक मुकर्रर वक्त है, उस तक वो किसी से शादी नहीं कर सकती, किसी से निकाह नहीं कर सकती। तो इस इद्दत के दौरान जो निकाह किया जाता है, क्या ये जादू की अलामत है या नहीं है? तो पूछने वाले ने ये सवाल किया है, उसका नाम भी हम सिगराज में रखते हुए ज़ाहिर नहीं कर रहे। तो यहाँ ये बात याद रखिएगा, अगर कोई ऐसा फर्द या कोई ऐसी औरत जिसने निकाह किया है, उनका अगर जादू के अंदर वो मुलव्वस हैं, पहले से ऑलरेडी वो जादू करते हैं, मर्द जादू करता है या औरत जादू करती है, तो अगर वो दोनों में से कोई भी एक बंदा जादू के अंदर मुलव्वस है पहले से, तो फिर अगर वो इस तरह का काम करता है तो यकीनन ये वाकई एक जादू की और इंतहाई भयानक जादू की ही अलामत होती है। तो याद रखिएगा, आप सोच रहे होंगे कि कौन सा जादू है जिसकी वजह से इद्दत के अंदर हो सकता है इंसान भूल कर भी कर ले। याद रखिएगा कि जो आम बंदा, गुनाह आम बंदे से भी होते हैं, कोई गुनाह का हो जाना बड़ी बात नहीं होती। एक गुनाह नमाज ना पढ़ना ये भी गुनाह है, दाढ़ी ना रखना ये भी गुनाह है, झूठ बोलना ये भी एक गुनाह है, गीबत करना ये भी एक गुनाह है। गुनाह का हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान है, खता का पुतला है, खता हो जाती है, गुनाह हो जाता है इंसान से। लेकिन एक ये है कि इस्लाम की इसके अंदर इहानत करना, तौहीन करना, शायर इस्लाम, जो इस्लाम के बुनियादी चीज़ें हैं, जो इस्लाम के ख़ास अरकान हैं, उनकी अगर कोई बंदा तौहीन करता है, मिसाल के तौर पर कोई दाढ़ी की तौहीन करता है, कोई नमाज की तौहीन करता है, कोई हज बैतुल्लाह वगैरह इन चीज़ों की तौहीन करता है। निकाह एक मसनून चीज़ है, अन निकाह मिन सुन्नती फमन रागिब अन फलैसा मिन्नी। निकाह भी एक बेहतरीन किस्म का एक शायर इस्लाम में से इसका अमल दखल है। तो इस किसी भी शायर इस्लाम की तौहीन करना, इहानत करना, ये परले दर्जे का गुनाह है और परले दर्जे का यूँ समझो कुफर है। और जब इंसान के जादूगर जो इंसान होता है उसकी शयातीन के साथ कुछ अहद व पैमान होते हैं कि जब वो जादू करता है तो शयातीन उसको इस ऐसे कामों की तरफ लगाते हैं कि वो अल्लाह ताला से उसका ताल्लुक़ टूटे और इस्लाम की उससे इहानत करवाते हैं, तौहीन करवाते हैं। उस आपने मेरी अगर पिछली वीडियोस देखी हैं तो इन वीडियोस के अंदर मैंने ये जिक्र किया था कि ये छोटे बच्चों के केस होते हैं, रेप केस होते हैं, तो ये भी इन जादूगरों की ही वजह से होते हैं। या इस तरह बाज़ दफ़ा नाहक कत्ल करवा देते हैं। ये असल में शैतान जो होते हैं वो अपनी रूह को तस्कीन देने के लिए, अपनी अना को तस्कीन देने के लिए इस जादूगर को इस तरह का हथियारा बना रहे होते हैं, इस जादूगर से वो काम ले रहे होते हैं।
تو پھر اس کے جادو کے اندر اتنی ہی قوت ڈالتے ہیں، اس جادو کے اندر اتنی ہی طاقت آ رہی ہوتی ہے جتنے اس سے یہ بھیانک کام لے رہے ہوتے ہیں۔ تو مجھے نہیں پتا آپ نے کس حوالے سے اور کس کی وجہ سے یہ سوال کیا ہے، تو بنیادی طور پہ موٹا موٹا جواب یہ ہے کہ اگر بالفرض کوئی بندہ ان دونوں میں سے جادو میں ملوث ہے، جادو کرتا ہے اور اس نے ایسا کام کیا ہے، تو واقعی ہی یہ جادو ہی کی علامت ہوتی ہے۔ جادو بڑا گناہ کوئی بھی ہو تو اس کے اندر جادوگر جو ہوتے ہیں وہ کرتے اس لیے ہے کہ اس کے جادو میں اندر پاور آتی ہے، شیطانیت بڑھتی ہے، غلاظت اور گندگی بڑھتی رہتی ہے۔ تو آج کا ولاگ ہمارا یہیں ختم ہوتا ہے۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔